नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। 1984 सिख दंगों पर अमेरिका में बोले राहुल गांधी, 80 के दशक में जो हुआ गलत हुआ। उस समय कांग्रेस से कई गलतियां हुई। ब्राउन यूनिवर्सिटी में छात्रों के सवाल पर बोले राहुल गांधी, इतिहास में हुई गलतियों की जिम्मेदारी के लिए तैयार है कांग्रेस। तो देखिए, 1984 सिख दंगों पर अमेरिका में बोलते नजर आए राहुल गांधी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 80 के दशक में जो हुआ गलत हुआ। उस समय कांग्रेस से कई गलतियां हुई, ये बात मानते नजर आए राहुल गांधी। यूनिवर्सिटी में छात्रों के सवालों का जवाब दे रहे थे राहुल गांधी और उन्होंने 1984 सिख दंगों में साफ तौर पर कहा कि 80 के दशक में जो हुआ गलत हुआ। You recently, in your last visit to the USA, you made a tweet speaking directly to Sikhs in India and abroad. And in that, you talk about what India under the BJP would look like, where you ask, will you be allowed to wear gadas? Would you allowed to be wear turbans under the BJP? So you create a fear amongst the Sikhs about what the BJP would look like. But you talked about how politics should be fearless. There should be nothing to be afraid of, right? But we don't just want to wear gadas. We don't just want to tie turbans. We want freedom of expression, which under the Congress Party in the past has not been allowed. For example, the Anandpur Sahib resolution, which you're probably familiar with, talks about these Dalit rights, right? Rights of water. It talks about better working conditions, anti-monopoly. It mentions nothing of separatism, but it's labeled as a separatist document. This is something your party has done, and your party seems to lack the maturity to accept the mistakes it has made, such as Sajjan Kumar just now being tried. And there's many more Sajjan Kumars currently sitting in the Congress Party. KPS Gill is hailed as a hero. Yet you tell us to fear what the BJP India would look like. But you've never really tried to reconcile with the Sikhs. Yeah, no. I think it's a minute now. What's your question? Point yes, I will get to my question. So what's the question? You haven't tried to reconcile with the Sikhs. What attempts are you making? Because if you continue like this, BJP is also going to make its way into Punjab. First of all, I don't think that really anything scares the Sikhs. That's the first point. The statement I made was that, look, do we want an India where people are uncomfortable to express their religion? As far as mistakes of the Congress Party are concerned, a lot of those mistakes happened when I was not there. But I'm more than happy to take responsibility for everything that the Congress Party has ever done wrong in its history. The question is, what are you doing to reconcile? I have publicly stated that what happened in the 80s was wrong. I have been to the Golden Temple multiple times. I have an extremely good relationship with the Sikh community in India and a loving relationship with them. और देखिए, राहुल गांधी के इस बयान के बाद अब राजनीतिक प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। संजय राउत ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। देखिए, राहुल गांधी जी एक साफ सुथरे दिल के राजनेता है। वो अपनी गलती मान लेते हैं, हमने देखा है। ऐसे नेता राजनीति में देश के हैं, हमारा भाग्य है। जिस ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इस देश में हमने एक प्रधानमंत्री को खोया है, आर्मी के जनरल को खोया है, लेकिन वो उस वक्त की जरूरत थी। लेकिन राहुल जी ने आज ये बात स्वीकार की कि गलती थी, मैं राजनीति में नहीं था। गलती मानना राजनीति में ये बड़ी बात है, बड़ी दिल की बात है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये बात राहुल जी से सीखनी चाहिए कि गलती माननी चाहिए और आगे जाना चाहिए। राहुल जी ने करके दिखाया है। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी रमन कुमार जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। रमन, राहुल का ये एक्सेप्ट करना कि 80 में जो हुआ वो गलत हुआ, तब मैं नहीं था, एक क्या बड़ा एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश इस मंच से की है राहुल गांधी ने। बिल्कुल, ये ब्राउन यूनिवर्सिटी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें छात्र ने सवाल पूछा एक इवेंट के दौरान कि राहुल गांधी से 1984 के दंगे और सिखों के मुद्दों पर कुछ सवाल पूछे थे। छात्र ने राहुल गांधी से पूछा कि आपने कहा कि राजनीति निडर होनी चाहिए, डरने की कोई बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम सिर्फ कड़ा पहनना नहीं चाहते, हम सिर्फ पगड़ी बांधना नहीं चाहते, हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहिए, जिसकी कांग्रेस पार्टी के शासन में अनुमति नहीं थी। छात्र ने कांग्रेस पर सिख आवाजों को अनसुना करने और 1984 के दंगों के आरोपी सज्जन कुमार जैसे लोगों को बचाने के भी आरोप लगाए।
लेकिन राहुल गांधी ने साफ तौर पर जवाब दिया कि पार्टी की कई गलतियां हुई उस समय जब वो राजनीति में नहीं थे। वे कांग्रेस पार्टी के इतिहास में हुई हर गलती की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा, मैंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि 80 के दशक में जो हुआ वह गलत था। मैं कई बार स्वर्ण मंदिर गया हूं। भारत में सिख समुदाय के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। इससे पहले भी जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उन्होंने सिख दंगों को लेकर 1984 सिख दंगों को लेकर माफी मांगी थी। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने माफी मांगी थी। अब राहुल गांधी का माफी मांगना ये दर्शाता है कि उनके मन में सिखों के प्रति काफी सम्मान है, काफी भावना उनकी जुड़ी हुई है। बिल्कुल, एक यहां से एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रमन इस तमाम जानकारी के लिए।